Hello students, myself Professor Suresh Hasbe from SDSM Junior College Palghar welcomes you all in today's session. Today we are discussing about 12th physics topic electromagnetic induction, subtopic self-induction. Okay, before discussing about the self-induction, please subscribe my channel, like, share and subscribe. Okay, come to the point. Self-induction. Now, when we are discussing about the self-induction, first look at the diagram here. You are given one coil, that is a coil is there, and one end of this coil is connected to the battery, okay, through key and rheostat. Another end is connected to the rheostat there. Now when current passes through this coil at that time, okay, look at the description there. Consider a circuit, that is a coil, in which the current is changing. The changing current will vary the magnitude of magnetic flux linked with the coil itself, and consequently an EMF will be induced in the circuit. Okay, means what happens here it is, when the current passing through this coil changes, at that time there is a change in magnetic flux of the same coil there. उसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होते जाएगा. ओके, एज वी आर वेल नोन दैट जैसे जैसे करंट इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते जाएगा. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, क्या इंडिकेट करता है फैराडेज फर्स्ट लॉ? जस्ट रिवाइज इट. क्या है था? Whenever there is a change in magnetic flux takes place, EMF must be induced. Means जब भी कहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे ईएमएफ जनरेट होना चाहिए. तो यहां पे भी वही हो रहा है. तो कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसी की वजह से वहां पे एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है अदर देन दिस बैटरी. रिमेंबर दिस वन, ये बैटरी का पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होगा ही होगा. उसके अपोजिट में दूसरा एक ईएमएफ जनरेट होने वाला यहाँ पे, ओके, विद अ स्मॉलर मैग्नीट्यूड. उसका वैल्यू कम होगा, बैटरी के पोटेंशियल के हिसाब से उसका पोटेंशियल बहुत कम होगा, लेकिन वहां पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ इंडक्शन. उसी को हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे. Okay, that means generation of or induction of a EMF in the coil due to the change in magnetic flux of the same coil is called as a self-induction. Understood this one? So the production of induced EMF in the coil itself on account of a change in the current in it is known as phenomenon of self-induction. Yes, self-inductance. Got it? उसी की वजह से खुद में उसी को आप लोग बैक ईएमएफ भी बोल सकते हो. ओके, नाउ लेट at any instant the value of magnetic flux linked with the circuit itself be phi corresponding to current I in it. It is obvious that phi will be proportional to the current. Means magnetic flux किसके ऊपर डिपेंड है? As we are well that it is acting as like an electromagnet. मीन्स जैसे जैसे करंट पास होगा ये मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जनरेट होने वाला है. करंट बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? करंट के ऊपर डिपेंड है. ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, देखो, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. और यदि हम लोगों ने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो वहां पे कांस्टेंट आता है, दैट इज एल. मींस फाई इज इक्वल टू एल आई, और L is equal to phi upon I. We are getting L is equal to phi upon I. Got it? Where L is nothing but the constant of proportionality and known as self-inductance. Okay, ये जो phenomenon था ये है self-induction. Got it? और यहाँ पे जो constant है इसका नाम है that is a self-inductance or coefficient of self-induction of the coil. Okay, that is denoted by letter capital L. That is a self-inductance या coefficient of self-induction. Okay, that you have to remember that. Now,
फॉर अ क्लोजली wound coil of n turns, अभी हम लोग जनरल और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि कॉइल के लिए n नंबर ऑफ टर्न्स है, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स will be linked with all the turns, हर एक टर्न के लिए उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, because the same current passes through the all the turns. When the flux through the coil changes, each turn of the coil contributes towards the induced EMF. Therefore, the term flux linkage is used for a closed wound coil. The flux linkage for the coil with the n turns corresponding to current I will be written as. तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा वो हम लोगों को लिखना है यहाँ पे। ओके, तो क्या आएगा देखो, n into 5b, that is directly proportional to I. ओके, अभी तक हम लोगों को 5 लिखा था हम लोगों ने, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n बढ़ गए, तो एक के लिए 5b, तो नंबर ऑफ टर्न्स है तो n 5b, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. देयरफॉर n 5b दैट इज इक्वल टू Li, या L इज इक्वल टू ये I इधर से हम लोगों ने इधर ले लिया, n 5b अपॉन I, दैट इज नथिंग बट द सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, नाउ फ्रॉम दिस वन वी कैन एबल टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। तो देखो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज गिवन बाय E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है, यूजिंग E इज इक्वल टू, अभी हम लोगों को यहाँ पे फाई इज इक्वल टू एल आई, जो हम लोगों ने फॉर्मूला प्रीवियस पोजीशन पे लिया था वो यूज करना है, यूजिंग फाई इज इक्वल टू एल आई। यही ऊपर का फॉर्मूला क्या होने वाला है, देखो E इज इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ फाई की जगह पे एल आई सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने, ठीक है। नाउ d/dt of Li. Out of this one, L is nothing but the proportionality constant. We can take outside the derivative sign. Therefore, minus L di/dt. Okay, we are getting in this way. Now, यदि हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसिडर करते तो ये निगेटिव साइन हट जाएगा, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए। तो यही फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ वी आर टेकन मैग्नीट्यूड देन वी आर गेटिंग सच फॉर्मूला देयर। यूनिट ऑफ एल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस वन, एल इज इक्वल टू ई एज इट इज, ये di/dt हम लोगों ने इधर से इधर ले लिया तो डिनोमिनेटर में जाएगा, मैग्नीट्यूड लिया इसलिए निगेटिव का पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया देखो इस फॉर्मूले में। तो L इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ di/dt। तो E is measured in terms of volts, di, that is I is nothing but the current is measured in terms of ampere, time is in terms of a second, means unit of self inductance, that is nothing but the volt per ampere second. ओके, या ये सेकंड ऊपर गया तो होल सेकंड पर एम्पियर आप लोग ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। बट दिस टुगेदर इट इज नोन एज अ हेनरी, एसी को होल सेकंड पर एम्पियर को आप लोग हेनरी, ऐसे हम लोग अभी आगे से इसका यूनिट कंसीडर करेंगे। तो अभी आप लोगों को याद क्या रखना है, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, गॉट इट। तो अभी हेनरी और उसके डेफिनेशन हम लोगों को डिस्कस करना था। तो देखो, डेफिनेशन ऑफ एल, सेल्फ इंडक्टेंस का भी डेफिनेशन हम लोगों को लिखना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस एल मे बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग वेज। अभी अलग अलग फॉर्मूले से हम लोग अलग अलग डेफिनेशंस लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 12.27 मींस फाई इज इक्वल टू एल आई, जो हम लोगों ने पहला फॉर्मूला लिया था उसके हिसाब से एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, ठीक है। तो फाई अपॉन आई के हिसाब से हम लोगों को क्या मिलने वाला है डेफिनेशन, देखो, हेंस the self inductance of a circuit is the ratio of magnetic flux produced due to current in the circuit linked with the circuit to the current flowing in it, sorry. तो magnetic flux upon current, the magnetic flux produced per unit current in the circuit is defined as its self inductance. तो इस फॉर्मूले से हम लोगों को एक डेफिनेशन कैसे मिल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ इंडक्टेंस, गॉट इट। नाउ एक इस फॉर्मूले से या इस इक्वेशन से हम लोगों को एक डेफिनेशन मिला। अब इस डेफिनेशन, इस फॉर्मूले से देखो, यूजिंग इक्वेशन 12.29, ये टेक्स्ट बुक का इक्वेशन नंबर दिया है, ठीक है। L इज इक्वल टू माइनस E अपॉन di/dt। तो ये मैग्नीट्यूड हट ले लिया तो ये निगेटिव साइन हटेगा, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा है। हेंस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज द रेशियो, इसका देखो, ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ
Okay, E is nothing but the induced EMF caused by changing current in the circuit. Induced EMF produced around the circuit to the rate of change of current in it. di by dt को आप लोग रेट बोल सकते हैं हम लोग. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एंड ये ईएमएफ है. तो इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ एल. जैसे यहाँ पे रेशियो किसका था, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट का, यहाँ पे ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट देयर. ओके, इन अदर वर्ड्स यही हम लोग जो अभी बोले हम लोगों ने डिस्कस किया वही हम लोग अदर वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं. देखो, इन अदर वर्ड्स द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड अराउंड द सर्किट पर यूनिट rate of change of current in it is defined as self inductance of the circuit. Okay, induced EMF produced around the circuit per unit rate of change of current. Okay, so these are nothing but the definitions. Okay, now third definition that you have to consider there. अब देखो third क्या है, when a current increases in the circuit and induced EMF acts opposite to it. इसीलिए हम लोगों ने इसको बैक ईएमएफ भी बोला था. ठीक है, consequently the work will have to be done in order to establish the magnetic flux associated with the steady current I0 in the circuit. तो इसी को हम लोग वर्क डन, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस बैक ईएमएफ जनरेशन देयर. देयरफॉर वर्क डन in time dt is equal to dw is equal to ei dt. This is the formula for work done in an electrical circuit. dw is equal to ei dt. Already we have discussed in 11th standard this one. Okay, तो यहाँ पे हम लोगों को सबकी वैल्यूज डालना है. E is equal to minus L di by dt, that we are well known. This I and dt as it is. Okay, this dt that gets cancelled. तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, देखो एल आई dt dt गया तो हम लोगों को माइनस एल आई डी आई. वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला देयर. देयरफॉर टोटल वर्क W that is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dW. तो यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेशन dW मिलेगा. Got it? That is total work done is there. ठीक है, तो इंटीग्रेशन लिया तो कहां से कहां तक, जीरो से लेके I0. हम लोगों ने ये मैक्सिमम स्टेडी करंट I0 कंसीडर किया, तो जीरो से लेके I0 तक माइनस एल डी आई बाई डी टी, सॉरी डी आई इंटू डी आई. Okay, now L we can able to take that's outside and we have taken the integration of this one. Already we are well known about this formula there. Integration का formula हम लोगों को मालूम है, that is integration of I di, that is nothing but the I square by 2. तो यहाँ पे हम लोगों ने अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोगों को ये फॉर्मूला मिला माइनस एल इंटू I0 square by 2. This is the work done there. That is a half L I0 square. That is in magnitude. And whatever this work done, यदि हम लोग ये work done consider करते, that is nothing but the energy there, energy in the inductor. ठीक है, तो now if I0 is equal to 1, यदि हम लोग यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो W is equal to L into I0 के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो हम लोगों को मिलेगा 2. ये 2 इधर से इधर ले लिया तो हम लोगों को L is equal to क्या मिलेगा, twice work done. Numerically it is. Okay, that is in self inductance is nothing but the twice the work done. Therefore इस फॉर्मूले के हिसाब से अभी हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन लिया, देखो क्या है, hence self inductance of a circuit is numerically equal to twice the work done in the established position there. Okay, yeah, associated with the unit current of the circuit. तो हम लोगों को ये टर्म्स अच्छे से याद रखनी है. ओके, तो तीन डेफिनेशंस हम लोगों ने ले लिए सेल्फ इंडक्टेंस की. Got it? तो अलग अलग डेफिनेशंस हम लोगों को यहाँ पे समझनी थी. अंडरस्टूड दिस? तो यहाँ पे ये याद रखोगे, L is equal to 2W, that is a work done. Now अभी तक हम लोगों ने कॉइल कंसिडर किया था. Now we are going to discuss about the solenoid. Small coil is small number of turns, less number of turns are there, then it is a coil. If the number of turns are increasing there, then it is considered as a solenoid. If a current I is established in the windings, turns of a long solenoid,
Okay, now remember this one. If number of turns are very large, then that coil can be treated as like a solenoid. Coil को ही हम लोग solenoid बोलेंगे कब? यदि number of turns are very large. Okay, so the current produces a magnetic flux phi b through the central region. तो magnetic flux phi b कहाँ पे generate होगा? Central region में. The inductance of the solenoid is given by L is equal to N phi b upon I. ये फॉर्मूला हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, where N is number of turns, N phi b is called as a magnetic flux linkage. Okay, for a length L near the middle of the solenoid, the flux linkage is N phi b is equal to NL into B vector dot A vector. This is the magnetic flux. तो ये phi B के जगह पे B vector dot A vector लिखा है. Okay, and NL that is nothing but the terms here it is. तो N क्या है? O देखो. तो पहले A देखो फॉर्मूला क्या है? डॉट लिया हम लोगों ने. थीटा इज इक्वल टू 0 तो NLB into A where N is the number of turns per unit length. ठीक है, तो स्मॉल एन क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. कैपिटल एन क्या इंडिकेट करता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये याद रखना है आप लोगों को. एज एन एग्जांपल आप लोग बोल सकते हो, यदि आप लोगों का सोलेनोइड 10 सेंटीमीटर का है, ओके, और वहां पे नंबर ऑफ टर्न जो है 100 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 100 हो गए. लेकिन स्मॉल एन कितना होने वाला है? दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 100, लेंथ कितना हुआ? 10. तो आप लोगों को स्मॉल एन का वैल्यू कितना मिलने वाला है? इट इज 10. गॉट इट? तो ऐसे आप लोगों को वहां पे कैलकुलेट करना है, वेयर बी इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड inside and A is nothing but the cross sectional area of the solenoid. तो these are the terms are there. N के जगह पे N into small l रखा है क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं L लेंथ के लिए. ठीक है, phi b के जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये आप लोगों का डेफिनेशन. तो यहाँ पे हम लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज रिलेटेड टू दिस लेंथ L निकल गया. ठीक है, नाउ we know that the magnetic field inside the solenoid is given by equation. ये चैप्टर नंबर 10, अभी हम लोग 12 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 10 में ये हम लोगों ने ऑलरेडी सोलेनोइड के बारे में डिस्कस किया है, और वहां पे ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव किया है. That is B is equal to mu 0 Ni. There is a magnetic field inside the solenoid. कौन सा टॉपिक? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. उस टॉपिक में ये इक्वेशन प्रूव किया है. B is equal to mu 0 Ni. Magnetic field inside the solenoid is equal to. तो hence L is equal to N phi B upon I. तो N phi B का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, NL B upon I. तो B के जगह पे A वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, NL mu 0 Ni into A upon I. This I gets cancel. ओके, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है? देखो, mu 0 AN और AN, N square L A. ओके, तो L is equal to mu 0 N square L A. Got it? That is the term that you have to remember there. तो ये टर्म आप लोगों को याद रखना है. अब देखो, where AL is the interior volume of the solenoid. AL, A into L क्या है? Is nothing but the interior volume of the solenoid there. Got it? ये याद रहेगा. अब देखो, this is nothing but the self inductance of the solenoid there. Now next point. तो अभी उसी फॉर्मूले से हम लोगों को देखो क्या मिलने वाला है. Therefore inductance of the therefore inductance per unit length near the middle of a long solenoid is capital L upon L, that is equal to mu 0 N A square upon A square into A, N square into A there. This is nothing but the
इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, ए कैपिटल एल इंडक्टेंस है, स्मॉल एल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है, तो उस फॉर्मूले से हम लोगों ने एल इधर ले लिया, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए that is equal to mu 0 n square. Now it is E, that is nothing but the pi d square by 4. Okay, तो area that is a d is being the diameter of the solenoid. तो हम लोगों को area of the circle, solenoid is nothing but the circular part is there. तो area पर circular loop of the solenoid loop there, then it is pi r square. R is nothing but the d by 2. तो वहां पे square हम लोगों को मिला pi d square by 4. That is a diameter d there. Okay, this implies that inductance of a solenoid depends upon, किसके ऊपर डिपेंड है? देखो, L is directly proportional to n square. That means number of turns per unit length. L is directly proportional to d square, that is a diameter, as n is number of turns per unit length, and inductance can be written as a product of permeability constant mu 0 and a quantity with dimensions of length. This implies that mu 0 can be expressed in Henry per meter. Okay, that we have to remember there. That is a related to this mu 0. Mu 0 हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वो लिखा है, that is a Henry per meter there. अब देखो, ये जनरल फॉर्मूला हम लोगों का सोलेनॉइड को हुआ, that is a related to the inductance. ठीक है, that is इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड. अभी हम लोगों को डिस्कस करना है, यदि ये इंडक्टेंस सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा तो हम लोगों को क्या फॉर्मूला मिलने वाला है. ओके, already we are well known that when resistances are series and parallel, वैसे ही यहाँ पे हम लोगों को series और parallel combination है. If several inductances are connected in series or in parallel, then the total inductance is determined by using the following relations. तो series combination के लिए क्या है? That is addition of all inductances there. That is nothing but the total inductance. L total is equal to L1 plus L2 plus L3 and so on. That is for series combination, direct addition there. And for parallel combination, what is 1 upon L total is equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus 1 upon L3. That is means sum of all reciprocals of the inductance. That is nothing but the parallel combination. Same as like resistances are in series and parallel. Okay, resistance के लिए भी ऐसे ही फॉर्मूला है, R total is equal to R1 plus R2 and so on. Okay, yeah, when they are in parallel 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, ऐसे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं. तो आप लोगों को वो याद रखना है, resistance is in series and parallel, same यहाँ पे inductance is in series and parallel. Okay, now next point, that is energy stored in a magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना एनर्जी स्टोर होगा. ओके, नाउ देखो, अभी वी हैव सीन दैट द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल causes an induced EMF. Okay, that is a Faraday's first law. Okay, now the induced EMF so produced opposes the change, and hence the energy has to be spent to overcome it to build up a magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड यदि जनरेट करना होगा तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको अपोज करना पड़ेगा या ओवरकम करना पड़ेगा. गॉट इट? नाउ दिस एनर्जी मे बी रिकवर्ड एज हीट इन अ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. वही एनर्जी हम लोगों को हीट एनर्जी करके यूटिलाइज होती है या रिकवर होती है. गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो व्हाई द रेजिस्टेंसेस गॉट हीटेड, इसका रीजन यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को. Okay, now this fact gives the logical concept of energy being stored in the magnetic field. तो यही कॉन्सेप्ट, ये फैक्ट जो है, ये हम लोगों को किसका कॉन्सेप्ट इंडिकेट कर रहा है या कौन सी बात हम लोगों को समझ में आ रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड भी वो एक एनर्जी स्टोर करता है. ओके, तो वो कितना एनर्जी स्टोर करता है उसके बारे में डिस्कस करना है. वी हैव डील्ड with a similar problem in electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक जो टॉपिक है, ओके, उस टॉपिक में हम लोगों ने ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है, वेयर द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी UE is stored in the medium between the plates of the capacitor with capacitance C and charge Q held at potential V.
तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है UE इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C दैट इज इक्वल टू CV² अपॉन 2। ये जो फॉर्मूला है ऑलरेडी हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो इतना एनर्जी कैपेसिटर के अंदर होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इसलिए हम लोगों ने ई वर्ड यूज किया है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C इन टर्म्स ऑफ अ चार्ज एंड कैपेसिटी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C there in terms of a charge, sorry, capacitance and potential, that is a half CV square. Now we can estimate the energy spent to build up a current I in the circuit having an inductance L. अभी ऐसे ही हम लोगों को इंडक्टेंस में कितना एनर्जी स्टोर होता है, ये कैपेसिटेंस में कितना एनर्जी स्टोर हुआ ये देखा हम लोगों ने। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटेंस, अभी यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टेंस, वो डिस्कस करना है। अब देखो, the induced EMF E is equal to minus L di by dt, ये हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है। ओके, तो अब देखो, the work done in moving a charge dq against this EMF, इतना EMF जनरेट हो रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मींस इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है दैट इज अगेंस्ट। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को यदि चार्ज dq मूव करना होगा तो हम लोगों को कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, वैल्यू ऑफ दैट वर्क डन इज इक्वल टू d इज इक्वल टू माइनस e इंटू dq। ओके, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, वी आर मूविंग अगेंस्ट द EMF and charge, move displacement of the charge and the direction of the EMF are opposite to each other, इसलिए ये नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, तो ये E का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो इसका ये नेगेटिव, इसका ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो हम लोगों को क्या मिला, L di by dt into dq। गॉट इट। अब देखो, ये मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने ऐसे लिखा, दैट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ दिस टर्म्स आर देयर, di into dq upon dt, but dq upon dt that is nothing but the electric current। okay, I is nothing but the rate of flow of charge। तो यहाँ पे हम लोगों को dq by dt is equal to I मिला, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, it is dw is equal to li di, मीन्स dq इतना स्मॉल चार्ज मूव करने के लिए हम लोगों को dw इतना वर्क डन करना पड़ेगा। dq इतना स्मॉल चार्ज मूव करने के लिए dw इतना वर्क करना पड़ेगा, तो टोटल चार्ज मूव करने के लिए हम लोगों को कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो देखना है। दैट मींस therefore total work is equal, w is equal to integration of dw, कहां से कहां तक, 0 से लेके I तक, इतना करंट जनरेट करने वाला चार्ज I, that is Li di। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेशन का पोजीशन L कांस्टेंट बाहर ले लिया हम लोगों ने इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन हम लोगों को मिला I di। तो यदि इसका इंटीग्रेशन हम लोग यूज करते हैं तो हम लोगों को हाफ Li स्क्वायर ये टर्म मिलने वाला है। ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx दैट इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x के जगह पे I ऐसे मान लो, ठीक है, एंड dx के जगह पे di, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो वर्क डन कितना मिला, देखो, हाफ Li स्क्वायर दैट इज इक्वल, दैट इज नोन एज अ UB। दिस वर्क डन is stored as like a magnetic energy there। This is the energy stored UB in a magnetic field and is analogous। अभी ये जो एनर्जी है UB, it is analogous to the energy stored UE in the electric field in the capacitor given above। तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैपेसिटर का और ये दोनों फॉर्मूला देखो, UE that is a electrostatic energy half CV square। ठीक है, तो energy stored in a magnetic field UB that is equal to half Li square। मींस ये दोनों इक्वेशन कितने सिमिलर है, इसी को आप लोगों ने ये वर्ड यूज किया है, एनालोगस, सिमिलैरिटीज। ठीक है, हाफ के जगह पे हाफ है, पोटेंशियल के जगह पे यहाँ पे करंट है, ये कैपेसिटेंस के जगह पे यहाँ पे इंडक्टेंस है। ओके, C is nothing but the capacity of a capacitance of a capacitor, L inductance of the coil। तो ये दोनों इक्वेशन कितने सिमिलर है या एनालॉगस है, ये हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर किया। गॉट इट। तो मतलब आप लोगों को समझना क्या है, देखो, इंडक्टेंस में एनर्जी और
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर्स में दे आर सिमिलर क्वांटिटीज आर देयर, ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो सिमिलर है, ये हम लोगों को समझना है इसी के ऊपर से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।